हरि की जय, श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन करी भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राधे। भागवत के सार बोल दो ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I'd like to only bear the voices for the speed of Guru Prabhupada, Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, the lotus feet of Shiksha Gurudev Srila Bhakti Vikyam Bharati Goswami Maharaj, to Puja Sri Bhakti Vedanta One Maharaj, and to all Vaishnavas and Vaishnavas who are present here. Whenever we used to go to any house with Puja Sri Bhakti Vikyam Bharati Goswami Maharaj, then always he used to recite one verse by Prahlad Maharaj. When Prahlad Maharaj is telling his father Hiranyakashipu, any house in which one is not doing bhajan is known as Andhakupam. And whenever Gurudev, whenever he used to recite this verse, whenever he used to speak on Prahlad Charitra, then Gurudev used to give an example. What is the meaning of Andhakupam? He used to say, from example by Sri Vishnu Chakravarti Thakur, that for example, if a person is going hunting in the forest, at that time a tiger saw him and started chasing him. At that time, running away from the tiger, he was trying to find a way to escape from the tiger. Then he saw a well, a well that is without any water. So he quickly jumped and took hold of some branches that was coming from the tree to the well. So he supported himself, trying to take himself down to the well so that the tiger could not reach him. So at that time, the tiger was at the top of the well, trying to growling at him. And he said, I'm safe now. Then he saw at the bottom of the well, there were some poisonous snakes. It was hissing at him. So he was a bit afraid. What will happen? How long can I hold on to these branches? In the meantime, he saw two rats biting on the two branches he was holding on to. One is a white rat and one is the black rat. At that time, he said, oh, they're slowly biting into the branches, so eventually it will break. He knows I'll definitely die. If I climb up, the tiger will get me. If I don't do anything, the branches will break and the snakes will bite me. So in the meantime, because he was thinking and he was moving the branches, at that time, just above, on top of his head was a beehive. And with the shaking of the beehive, some honey was falling down. So he put out his tongue to taste his honey. So in that time, when he tasted this sweet honey, he almost forgot his problems, as well as the bees and swarm here and there biting him. Still, he was tasting the honey, so he forgot what kind of situation he is in. So Srila Gurudev used to tell us that this is our situation, that we're in this material world, and everywhere death is there. The tiger represents death. The snakes represents all the problems, and the bees, they say Swajana Dakshu. That like, even though one may appear as friends, but really everyone in this world, if they're not engaging us in Krishna bhajan, is really sucking our blood, taking us away from Krishna and engaging us in the cycle of birth and death. And these two rats is white and black, is showing that this is night and day. Just as each day and night passes, our life is slowly going away. It's definitely going to reach death. So unless we engage in bhajan, like Srila Maharaj was saying in his Bhagavad Katha, and when we engage in bhajan, when we listen to Krishna Katha, that time our life
life is not, time is stopped. So in this way, Gurudev is to give this example that we should not forget the situation we are in. Death can come at any time. So we should use our life in the service of Bhagwan, Hari, Guru and Vaishnavas. There's one example. Then Bhaktivinoda Thakur said, because we're in the house of devotees, he said, the house where bhajan is done, we should understand this is not different from Golok. So therefore, Narottam Das Thakur said, Griha banake take ha Gauranga bole jake Narottama mange sangha. That whether one is a Grihastha, whether one is a Brahmachari, as long as he is engaging in the service of Hari, Guru and Vaishnavas, we are desiring for the association. Because it doesn't matter externally. Externally, we cannot say who is a devotee. It's not that only brahmacharis or sannyasis are devotees and grihasthas are not devotees. It all depends on their bhakti. That is, gives a qualification. So, we are in the house of Nitin Prabhu. Nitin Prabhu has been helping us so much in the matter. I was just thinking, brahmacharis come and go, but Nitin Prabhu and few others have always been like yesterday we do the Prabhuji's house also, they also here. Brahmacharis come and go, but they are always here to support the mud. So, we are very grateful. So in this way, I'll say finish here. One chakal pataru by step because they will Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Vande Mana Manasa Madhukara Karmayani Jabara Jama Garane Mana
अरे आप कहाँ जा रहे हो? बैठे ये मुझे ले जा रहे हैं। अरे वो उसके साथ इधर बैठो नीचे राघव यहाँ पर जो ऊपर बाबू जी आप ऊपर बैठो बाबू ये डाल ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीन अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामानि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद बोधम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलानारायण गोस्वामी महाराज का अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्त विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद की बात है
आप लोग के घर में हॉलैंड के बेटी आई है। गुरुदेव हॉलैंड जाते थे, गुरुदेव हॉलैंड नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? होली लैंड बोलते थे। बोले गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी जब हॉलैंड में जाते थे तो उनकी विशेष करके इतना सुंदर सुंदर गाय है, जो गाय 60 लीटर दूध देती थी। और वास्तव रूप में मैं तो गुरुदेव के साथ ही कई बार हॉलैंड में भी गए और गुरुदेव के साथ ही विदेश में रहे, तो देखा इतने बड़े बड़े गाय जो है देखने से ही वास्तव रूप में कृष्ण के समय जो गाय उसकी उद्दीपन आ जाता है, स्टिमुलेशन। इसलिए गुरुदेव भी कहते थे, होली लैंड कहते थे। अच्छी बात है। तो गुरुदेव की स्मृति, गुरुदेव की स्मरण आ जाता है। और ये लोग भी बहुत गुरुदेव की निकट में रह करके सेवा आदि करते थे गुरु वैष्णव की। देखा मैंने इनके परिवार के जन बेटी जो है बहुत सुशीला है, बहुत सुंदर इनके स्वभाव। मैं तो करीब आज 20 साल मैं विदेश में भ्रमण कर रहा हूँ और इन लोग के घर में भी गए, सर्वत्र में जाता रहता हूँ। गुरुदेव भी हॉलैंड भी हर साल जाते हैं, साल में 2 बार 3 बार गुरुदेव हॉलैंड जाते थे। और उधर के भक्त लोग भी बहुत रूप में गुरुदेव के साथ जो है सेवा आदि करते थे। तो कथा एक स्मरण आ जाता है। गुरुदेव एक कथा सुनाया था। एक बार द्वारिकापुरी में संग देवकी और वसुदेव कृष्ण और बलराम के लिए को उनके कल्याण के लिए एक भागु ऋषि के द्वारा यज्ञ करा रहे थे। क्या करा रहे थे? यज्ञ करा रहे थे। तो उसमें संग कृष्ण और बलराम भी बैठे हुए हैं, देवकी वसुदेव और द्वारिकापुर के जितने भी कृष्ण के परिकर है 16,108 महिषियां भी विराजमान थी। और ब्राह्मण लोग आकर के हवन आदि कर रहे थे। इतने समय वसुदेव महाराज कहने लगे कि आप लोग यज्ञ बंद कर दो। क्या बोले? कि यज्ञ जब प्रारंभ हो जाता है, जब तक पूर्णाहुति नहीं हो यज्ञ जो है बंद करना शास्त्र में विधि नहीं है। पूरा यज्ञ हो जाए और पूर्णाहुति हो जाए और नारियल और बाकी जो सामग्री लेकर के हम पूर्णाहुति देते हैं, तो तब यज्ञ की समापन होता है। किंतु आदि यज्ञ होते जा रहे हैं, उस समय वसुदेव और देवकी बोले, हे मुनि लोग, आप लोग यज्ञ बंद कर दो। मुनि ऋषि लोग कृष्ण की तरफ देखने लगे कि यज्ञ भी विष्णु ही एक यज्ञ के जो है अधिष्ठात्री देवता और साक्षात कृष्ण विष्णु है। कृष्ण के एक नाम है क्या? विष्णु है। और स्वयं भगवान विष्णु उनको घर में विराजमान है। यज्ञ भी विष्णु, गीता में लिखा है यज्ञ भी विष्णु। यज्ञ के साक्षात मूर्तिमान जो है विग्रह स्वयं विष्णु व कृष्ण विराजमान है। मुनि ऋषि लोग कृष्ण की तरफ देखने लगे, इसमें कृष्ण की सहमत है कि नहीं। क्योंकि शास्त्र में जितने भी विधान है, सारे विधान तो भगवान ने दिया ही है। इसलिए मुनि ऋषि लोग कृष्ण की तरफ देखने लगे और कृष्ण कहने लगे, हाँ यज्ञ बंद कर दो। मुनि ऋषि लोग कहने लगे, प्रभु आप तो यज्ञ के अधिकर्ता है, आप यज्ञ के विधान आप ही बनाया है और नियम हम लोग कैसे तोड़े। इतने समय भगवान कहने लगे, ये देखो मेरा माता पिता
देवकी वसुदेव जो कह रहे हैं उसका पालन करना है। स्वयं भगवान इतने ही कहने लगे पिता माता के, आ जाइए आप ऊपर, इधर आ जाओ, अरे निकट में आके कथा सुनो, आइए इधर ऊपर बैठो। अरे नहीं ऊपर, अच्छा जहां पर उनकी सुविधा है, ठीक है। कृष्ण स्वयं भगवान अपने माता पिता के किस प्रकार आदर किया, ये भी जगत जीव को शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में लिखा है अपने गुरुजनों के आदर करना हम सीखे, गुरुजनों के आदेश उपदेश के हम पालन करना सीखे। चैरिटी बिगिंस द होम। हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अपने घर से, अपने माता पिता गुरुजनों की आचरण देख करके हम सीखते हैं। जद जदादृश्यश्च तत्तत् एवेत रजना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करते हैं और उनकी अनुगत जन वही करते हैं। इसलिए कृष्ण जगतजीवों के शिक्षा देने के लिए भी यह कहने लगे, देखो देवकी वसुदेव मेरे माता पिता जो बोल रहे हैं, गुरुजन जो बोल रहे हैं वही करना चाहिए। किंतु मुनि लोग, ऋषि लोग यज्ञ करने वाले, ब्राह्मण लोग करने वाले, कैसे हम बंद कर दे प्रभु आप तो जगत पिता हो, जगदीश्वर हो, अनंत एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के आप मालिक हो, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के आप नायक हो, विधि विधान आपने ही बनाया है। और यदि आप स्वयं यदि विधि विधान को तोड़े तो संसार के लोग कौन पालन करें। किंतु उस समय से भगवान कृष्ण कहने लगे, जी देखो मेरे माता पिता जो बोल रहे हैं इसके एक विशेष तात्पर्य है। बोले क्या है? तो स्वयं भगवान कहने लगे, देखो आकाश के तरफ देखो। कहां तरफ देखो? मेरे तरफ नहीं, कहां देखो? आकाश की तरफ देखो। आकाश की तरफ सभी लोग आकाश की तरफ देखने लगे। देखा एक सुंदर जो उज्जवल नक्षत्र के भांति कुछ आ रहे। सभी लोग देखने लगे। आश्चर्य की बात है, अकस्मात आकाश से कोई एक उज्जवल तारे की भांति आने लगे। बोले क्या बात है, कौन आ रहे हैं? सब लोग के मन में क्या उत्कंठा जागे। और देखते देखते उजाला जितने भी निकट होने लगे और भी चारी दिशा को जो है उजाला कर दिया, इतने सुंदर होने लगे। और धीरे धीरे आते आते ठीक उसी यज्ञ स्थल में प्रकट हुई कौन? नारद ऋषि की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद ऋषि प्रकट हुए। स्वयं भगवान कहने लगे, देखो संत समागम ही ये यज्ञ के क्या है? फल है। जब साक्षात नारद ऋषि भक्त प्रवर नारद ऋषि जब प्रकट हो गए, संत समागम यज्ञ की फल क्या है? साधु संग। भक्तिस्तु भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अनेकों जन्म के सुकृति पुण्य जब एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तब जीव साधु संग करता है और साधु संग से भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए सत्संग की महिमा यहां पर देखा है। ये यज्ञ हवन आदि की फल क्या है? इस सत्संग। और सत्संग के फल क्या है? भगवत भक्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में 11th कैंटो में नव जोगेंद्र संवाद में भी वर्णन है। अत आत्यंतिक खेम पृच्छामो भवतो अनघा खनार्धोपि सत्संग सेवधि मृणा। हे राजन,
अतीब अल्पकाल, एक क्षण काल है, लब मात्र है। साधु संग सर्वशास्त्री कहे, लब मात्र साधु संग सर्व। ये लब क्या है? कौन बोल रहे हैं? लब ने हाँ 1 सेकंड का 11वां भाग है। एक देखो बच्चा बोल दे, क्या बोला? 1 भाग है। उतना ही समय तक जी कि सत्संग में बैठे हरि कथा श्रवण करे, ये सर्वसिद्धि है। सर्वसिद्धि क्या है? संसार में हम गृह घर की सामने क्या रखते हैं? लक्ष्मी गणेश के रखते हैं पूजा के। विशेष करके वो कौन सा समय आता है जब लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है? दीपावली के समय। दीपावली के समय हर घर में लक्ष्मी गणेश को रखा जाता है। गणेश इसलिए रखा जाए सिद्धि प्राप्ति हो जाए, और लक्ष्मी क्या हो? हमारे सारे धन प्राप्ति हो है। सिद्धिदाता और धन प्रदाता, ये दोनों की जो है पूजा है। इसलिए कहते किंतु सत्संग प्रभाव से कहते भक्ति होने से, अर्थात सत्संग से सर्वसिद्धि गोविंद चरण, भगवान की चरण कमल को प्राप्ति है। क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि जो कुछ भी है वास्तव रूप में भगवान की नख चंद्रमा की से ही प्रकट हुई है। ये देव देवियां जो है सब भगवान से ही लेकर के हम लोग के देते हैं। संसार के लोग जानते नहीं है, इसलिए सोच रहे वही दे रहे हैं। कौन? भगवान दे रहे। जैसे कोई भिखारी आपके दरवाजा पर खड़े हो गया, भिखारी कह रहे बाबूजी मुझे 1 रुपया दीजिए। आजकल तो भिखारी 1 रुपया नहीं मांगते। उस दिन बोला मुझे 200 रुपया दिलाइए। कितना बोला? वो 100 रुपया नहीं बोले, 200 रुपया दे। मैं उनके घर में गया था, तो भिखारी आके बोले 1 रुपया तो बात ही नहीं करना चाहते, 10 रुपया भी बात नहीं करते, डायरेक्ट कितना बोला मुझे? बोले 200 रुपया दे। बोले दिल्ली के है ना, बोले दिलदार है ना सब। भिखारी बोलते हैं, बोलते हम भी दिलदार कहेंगे। हाँ तो जैसे मैंने उदाहरण दे रहा था, एक भिखारी आकर के बोले मुझे 1 रुपया दे। ठीक है, अच्छा आपके गेट के पास कौन खड़े हुए हैं? कौन रहता है गेट के पास? डोर के पास रहता है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो आपने क्या की, वो 1 रुपया किसको दिया? सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया है। और सिक्योरिटी गार्ड वो भिखारी को दे दिया। भिखारी सोचा यही सिक्योरिटी गार्ड मुझे पैसा दे रहे हैं। दिया किसने? किसने दिया? मालिक आपने दिया। आप अपने जेब से, वो सिक्योरिटी गार्ड वो अपने जेब से नहीं दिया, दिया तो आपने। किंतु भिखारी सोच रहा है यही घर का मालिक होगा, यही घर का मालिक होगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार के लोग नहीं जानते हैं ये रिद्धि सिद्धि जो कुछ भी धन संपत्ति मुझे कहां से प्राप्ति हो रहा है। प्राप्ति हो रहा है स्वयं भगवान से। भगवान के आदेश बिना कोई देव देवी जो है हमें दे नहीं सकते। इसलिए समस्त देव देवी कहा जाता क्या है? भागवत में श्लोक रहा है, देव देवी सब कर्म सचिवा, ये सब मेरा कर्म सचिव है। मेरे आदेश से सारे देव देवी जो अपने अपने कार्य डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, मैं ही जो है सब मालिक हूं। मत्तम परतरो नन्नत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझे छोड़ करके संसार में कुछ नहीं, मैं ही स्वयं भगवान हूं। मेरे आदेश से सूर्य उदित होता है और अस्त हो जाता है। मेरे आदेश से हवा चलती है, मेरे आदेश सब कुछ होते जा रहा है। मैं दक्षिण प्रकृति सुवते सचराचरम।
हेतु अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित है। किंतु संसार के लोग ये तत्व को नहीं जानते हैं, ये तत्व को नहीं जान पाते हैं। जैसे एक भिखारी वो घर के बाहर गेट के पार के सोचने लगे ये घर के मालिक है, ठीक उसी प्रकार संसार के लोग माया के द्वारा मोहित होकर के मुझे समझ नहीं पाते ये मैं विश्व ब्रह्मांड के मालिक हूं। मेरे साथ इसलिए भगवान कहते हैं मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु। गीता की वचन है ना, गीता पढ़ते हैं आप लोग, गीता में क्या लिखा? भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, मैं तुमको सब कुछ दे देता हूं। एक बार गुरुदेव एक कथा सुना रहे थे। एक भिखारी अकबर बादशाह के पास आया। किसके पास? अकबर बादशाह, उस समय मुसलमान राज अकबर बादशाह के पास। वो भिखारी अकबर बादशाह के बोले महाराज सम्राट मुझे कुछ धन दीजिए, धन दिलाइए। अकबर बादशाह बोले अच्छा यहां पर बैठो, बैठो। ओ बैठे। कुछ समय के बाद अकबर बादशाह उनको आकर के 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद धन देने लगे। तो वो व्यक्ति कहने लगे ये महाराज ये आप बताइए आप जो मुझे जो धन दिया इतना समय लगाया क्यों घर से आने में? तो अकबर बादशाह कहने देखो ये सब कुछ वस्तु जो है अल्लाह का है, खुदा अल्लाह का है, इसलिए मैं इसलिए अल्लाह से प्रार्थना किया ये अल्लाह ये तुम्हारी ये वस्तु है, कोई व्यक्ति मांग रहे मैं दे सकता हूं नहीं दे सकता, इसलिए तुम अल्लाह से मैं प्रार्थना करके अल्लाह से ही लेकर के तुमको दे रहा हूं। तो भिखारी कहने लगे तुम भी अल्लाह से क्यों मांगते? मैं तारीख भगवान अल्लाह से मांगो, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? मैं अल्लाह से ही मांगता, मांगना है तो डायरेक्ट भगवान से मांगो। जैसे ध्रुव प्रहलाद युधिष्ठिर महाराज क्या भगवान से नहीं मांगा? भगवान से मांगो, भगवान दे देंगे। और भगवान जो देते हैं वो सचमुच कर अच्छी विचार करके हमें देते हैं, किंतु और भी देव देवी तो देंगे वो विचार करके नहीं देंगे। पुत्र मांगना है तो भगवान से डायरेक्ट मांगो, क्यों नहीं देंगे? बोले इसके प्रमाण है क्या? जैसे हम कभी भागवत कथा सुन रहे हैं ना, कृष्ण सुतवा संग विष्णु की आराधना की और कहने लगे प्रभु मुझे एक पुत्र दीजिए, आपके भांति एक पुत्र दीजिए। देखो डायरेक्ट भगवान से मांगा कि नहीं? बहुत लोग सोचते हैं नहीं भगवान से क्यों मांगू, अरे भगवान तो दिन भर डायरेक्ट वही दे देंगे तुम्हें, और भगवान जो पुत्र देंगे वो अच्छा पुत्र होगा, है? और तुम भिखारी से जो पुत्र मांगोगे वो हो सकता है चोर डकैत दुष्ट हो जाए, है? भगवान से मांगना है तो भगवान से मांग लो, है? अच्छा मांगे। जैसे कृष्ण सुतपा, हम जो भागवत कथा बोल रहे हैं ये कृष्ण सुतपा की कथा पहले आ जाता है। ये कृष्ण और सुतपा दोनों हजारों साल तक जो है संग भगवान निकट प्रार्थना कर तपस्या आदि करने लगे। भगवान प्रसन्न होकर के बोले बरंग भी बर मांगो, तो अब ये दोनों कृष्ण सुतपा भगवान निकट कहने लगे प्रभु आपके भांति एक पुत्र हमें प्रदान करें। पुत्र मांगना है तो भगवान से ऐसे मांग लो। कैसे? पुत्र हो तो भगवान विष्णु के भांति हो, है? संतान संतति सभी तो जन्म देता रहता है, एक कुत्ते भी बच्चा पैदा, कुत्ती भी बच्चा भी देता है? किंतु संतान संतति प्रसव करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुत्र संतान हो तो प्रहलाद जैसे हो, है? भगवत भक्त हो,
भगवान से मांगो तो क्या मांगो, ये भगवान मुझे ऐसे पुत्र संतान दीजिए जैसे वो धार्मिक हो, परोपकारी हो, माता पिता के वंश के उज्जवल कराने वाले हो। उज्जवल समझते हो, अपने वंश के जो है उज्जवल करे। नहीं तो पुत्र हो तो दुर्योधन यदि हो और सब ध्वंस हो जाए। तो पुत्र मांगना है, भगवान से पुत्र मांग लो तो वही पुत्र होगा, जगत कल्याण करेगा। इसलिए पुरुषनिष्ठतपा भगवान से कहने लगे, प्रभु यदि प्रसन्न हो गया तो आपके भांति एक पुत्र प्रदान करें। तो भगवान कहने लगे, स्वयं भगवान विष्णु कहने लगे, मेरे भांति तो हो नहीं सकता है, मैं तो अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय, मेरे भांति कोई शब्द नहीं हो सकता है। तो स्वयं भगवान कहने लगे, विष्णुस्तुतपा आप लोग की कठोर तपस्या से मैं संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, जाओ मैं ही तुम्हारे जो है 3 जन्म पुत्र होकर के ही आऊंगा। कितने जन्म? 3 जन्म, और हर जन्म में ही तुम्हें याद दिला दूंगा। इसलिए पहले जन्म में संग भगवान विष्णुस्तुतपा के पुत्रों के जन्म लिया, उसके नाम था क्या? वृष्णि गर्भा, संग भगवान। दूसरी बार संग वही वृष्णि और गर्भ, वृष्णि और सुतपा असप उदिति होकर के जन्म लिया, और समय संग भगवान उनके वामन देव के रूप में ही प्रकट हुए। संग भगवान वामन देव। तीसरी जन्म में वही वृष्णि सुतपा देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट हुए, और स्वयं भगवान कंस के कारागार में प्रकट है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट है। और देवकी वसुदेव की भी स्मरण दिलाया, हे देवकी वसुदेव आप लोगों को मैं वचन दिया था, 3 जन्म आप लोग में पुत्र होकर जन्म ले, देखो मेरी स्वरूप के दर्शन करो। उसके वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी मांगना है तो भगवान से कोई मांगे तो भगवान अच्छी वस्तु देता है। और दूसरे से मांगो वो आपके हो सकता है वो बेटा अच्छा नहीं हो। धुंधुकारी गोकर्ण की कथा है। संत महात्मा की कृपा से जो होता है वो गोकर्ण हो जाएगा है? और इधर उधर मांग लो, हो सके वो धुंधुकारी हो जाए। इसलिए प्रभु के निकट मांगो। भगवान जो देते हैं वो विचार करके देते हैं। संसार में धन संपत्ति जो कुछ मांगना है भगवान से मांग लो। जिसलिए स्वयं भगवान ध्रुव के भी संपत्ति दे दिया। 36,000 साल तक उनके निष्कंटक रूप में राजत्व करने के दिए, और इसके लिए भी उनके लिए एक लोक जिसको कहते ध्रुव लोक भी स्वयं भगवान रचना की। और करने लगे जब तक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारका आदि रहेंगे तब तक ध्रुवलोक की इस कथा सभी लोग स्मरण करेंगे। तो मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान श्रीहरि के आराधना करें, उनकी ही पूजा करें। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे आराधना जो करते हैं मैं साक्षात में सब कुछ दे देता हूं। और अंत में उनके जब प्रारब्ध कर्म आदि जब नष्ट हो जाता है, भजन करते करते जब चित्त निर्मल हो जाता है तब मैं उनको मेरे ही चरण कमल में सेवा के रूप में मैं ग्रहण कर लेता हूं, और मेरे नित्य शाश्वत चिरंतन चित जगत वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और जिसके फलस्वरूप इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ता है। जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। संग भगवान कहते हैं कोई मेरे धाम में पहुंच जाए इस संसार में आना नहीं पड़ता। इसलिए एकांतिक रूप में गोविंद की सेवा, गोविंद की भजन की कथा, श्रीमद् भागवत गीता
आदि में ये बताया है। इसलिए एकांतिक होकर के निष्ठा के साथ भजन आदि करें। यही सार हमारे बता रहे, भागवत की सार इसी प्रकार ही है। जे गुरु की चरणाश्रय करके एकांतिक निष्ठा के साथ अपने इष्ट देव के देव भजन करें। और समय जब आ जाता है तो ये शरीर छोड़ करके साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर लेते। यही जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण कलियुग में राधा जी के भाव और कांति लेकर के ही गौरांग के रूप में प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों की यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाइयों, संसार को अनित्य जान करके और संग भगवान भजन करो। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं एक दिन वो चला जाए। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, एक काना कौड़ी भी जाएगा नहीं। इसलिए उसके लिए इतना प्रयास करना नहीं चाहिए। भगवत इच्छा से अथवा पूर्वजन की कर्म के अनुसार वो बिना प्रयास से आ ही जाएगा। इसलिए कहते हैं पूर्वायद गच्छितम धनम, पूर्वायद गच्छितम कर्मम, पूर्वायद गच्छितम विद्यां, पूर्वं धावती धावती धावती। पूर्व जन्म में जैसे जैसे मैंने कर्म किया उस कर्म के अनुसार वो समस्त फल अपने आप आते जा रहे हैं। आज आपकी भोजन है कि नहीं है, ये भी पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित है ये। आप भोजन कर पाओगे कि नहीं पाओगे? यदि आज के दिन आपके भोजन में ललाट में लिखा नहीं है, सहस्र प्रयास करने पर भी, हजारों प्रयास करने पर भी थाली भी आ जाएगा है, किंतु उस थाली को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत देखा है। पुत्री ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया है, 56 प्रकार के जो है व्यंजन बनाया, सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया, रख दिया। भोजन करने के लिए गए, इतने समय पति पत्नी में साधारण कोई बात होने लगे, बात होते बात इतने बढ़ गया, बस दोनों ही जो है मैं ऐसे हो गया, भोजन की थाली छोड़ करके वो चले जाते। ये क्यों होता है? बोले सब पूर्व निर्धारित है, हम जानते नहीं है, इसलिए हम इतने प्रयास करते जा रहे हैं। किंतु वास्तव रूप में जो है ये सब प्रीडेस्टिन्ड लिखा है, क्योंकि हमारे पूर्वजन के कर्मों के उस कर्म के साथ अनुसार उतना ही परिमाण आपको धन प्राप्ति हो जाएगा और उतना ही परिमाण आपके सब कुछ हो जाएगा। तो आप यदि कहे यदि सब पूर्व निर्धारित है तो हम प्रयास क्यों करें? ये तो आप कर सकते हैं। यदि आज मुझे 500 रुपया 1000 रुपया कमाते हो, आप एक दिन में कितने पैसे कमाते हो? अच्छा बोलोगे नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। मानो एक व्यक्ति एक दिन में 10,000 रुपया कमाता है, दुकान में जैसे भी कमाता है, लेकिन 5,000 रुपया 2,000 रुपया जैसे कमाता है। यदि कहे यदि मेरा ये पूर्व निर्धारित है तो हम काम नहीं करेंगे, हम घर में बैठे रहे, देखिए हमारे घर में आ जाते कि नहीं आता है। लोग कहते कि नहीं कहते? लोग कहते हैं, बोले हम काम नहीं करेंगे हमारे पास कैसे आ जाएगा? हम जब इसके उदाहरण दे, पूर्व निर्धारित है, तुम्हारे जो कुछ भी है पूर्व निर्धारित है। यदि पूर्व निर्धारित हमारे पास आज हर रोज आज यदि हमें 2,000 रुपया मुझे प्राप्त हुआ है तो हम काम क्यों करें? दुकान में क्यों जाएंगे? दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, दुकान बंद करके रखा जाए। क्या दुकान बंद करने से हमें पैसा मिल जाएगा? क्या विचार है आपको? क्या विचार है बताओ? नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? दुकान खोलना पड़ेगा। दुकान आपको खोलना ही पड़ेगा।
है। किंतु हम तो यही करें नहीं, आपके पूर्व निर्धारित है। आप जो कह रहे हैं हम दुकान खोलेंगे नहीं, देखते हो 2000 रुपया आता है नहीं, कि हम तो हर रोज 2000 रुपया हमारी दुकान से प्रॉफिट होता है। चलो मैं नहीं कह रहा हूं, ज्यादा तो होता है इसे, है। तो 2000 रुपया आज कैसे हमें पड़ता, दुकान नहीं खुलने से? गीता में भगवान इसके भी उत्तर दे रहे हैं। देखो तुम्हारी जो पूर्व निर्धारित जो है 2000 रुपया प्राप्ति है दुकान खोलना, तुम दुकान बंद नहीं रख सकते हो। काम हित ज्ञान, तुम्हें कामना वासना और विशेष करके माया के जो गुण जो है उसके द्वारा ही वो परिचालित करेंगे, दुकान तुम्हें खुलवाएंगे, है। क्योंकि आपके पूर्व निर्धारित है आज दुकान के प्रॉफिट तुम्हें 2000 रुपया होगा, इसलिए आप जानते नहीं है वो माया के जो गुण जो है सत्व रजो तम गुण के द्वारा ही आपके खुलवाएंगे दुकान, और आपके आज 2000 रुपया प्राप्ति होगा। आप बंदा नहीं रह सकते, क्योंकि संसार के जितने भी जीव जो है माया के गुणों के द्वारा वो परिचालित हो रहा है। किसके द्वारा? माया के गुणों के द्वारा, सत्व रज तम गुणों के द्वारा वो परिचालित हो रहा है। ये जब माया के सत्व रज तम गुणों के द्वारा परिचालित हो रहा है तो आप दुकान बंद नहीं रख सकते। आप कहेंगे हम दुकान बंद करके देखता हूं मेरे 2000 रुपया मिले कि नहीं मिले, यदि हमारे पूर्व निर्धारित है भाई, इसमें भी कार्य नहीं, तुम बंद नहीं रख सकते हो। वही तो माया के गुण के द्वारा तुम्हें करना पड़ेगा। इसे गीता में भगवान कहते हैं इस संसार में सारे जीव मेरे माया के गुणों के द्वारा वो सब कर्म का आदि करते रहते हैं। आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि पूर्व निर्धारित कर्म आदि की फल वो आपके लिए तैयार है, उसकी आपकी प्राप्ति करना है। और कर्म की उसी प्रकार जो पूर्वजन्म के प्राप्त कर्म की उसके चलते जा रहे हैं, जिससे स्वयं महाभारत में एक कथा भी इसी प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं। जब भीष्म पितामह उस वह पर रण सज्जा में जब लेटे हुए थे तीर के ऊपर, जिसे आप लोग जानते हैं सर, जहां पर भीष्म तो कहां लेटे हुए थे? शैर सज्जा पर। अर्जुन ने ऐसे गंडी मार दिए और गंडी के हजारों जो है तीर आ गए, उसके ऊपर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। और उस समय पांडव लोग और कौरव लोग युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एक तरफ आ गए, और दूसरी तरफ जो है दुर्योधन, दुशासन आदि सब एकत्रित हुए। भीष्म पितामह के निकट युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न किया, वो बहुत सुंदर गंभीर प्रश्न। इस प्रसंग में आपको बताता हूं ये जीव किस प्रकार माया के सत्व रज तम गुण के द्वारा किस प्रकार कार्य आदि करते हैं, इसकी प्रमाण दे रहे हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न, अनेक प्रश्न पूछा उसमें, देखोगे आप महाभारत में पढ़ो देखो उसमें सारे अनेक प्रश्न पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न पूछा, जे देखो इस जो विशाल जो कुरुक्षेत्र रणभूमि में इतने सेना लोग आए हैं, कितने सेना लोग आए हैं? कितने सेना? 18 अक्षौहिणी सैन्य, उनके तरफ 18 अक्षौहिणी सेना, और उनके पक्ष जो है कौरव के पक्ष में 11, इनके पक्ष में है। अक्षौहिणी शब्द होता है ये करोड़ के बाद जो है फिर 2 जीरो लग जाता है, 8 अंक होता है ना, है एक लिख करके 7 जीरो देने से 1 करोड़ बन जाता है। फिर उसके ऊपर जो है लगा दिया जाता है 2 शून्य जीरो लगा दो, फिर उसके ऊपर जो है उसको कहता है अर्भूत, निर्भूत, शंख, पाद्म, फिर अक्षौहिणी शब्द होता है। ये सब प्राचीन कालों की जो है हमारे
सांकेतिक जो है ये सब शब्द है। चलो अर्थात ये समझ लीजिए कई मिलियन जो है होगा, मिलियन ब्रिलियन ट्रिल ये सब होते जाएगा। वो भी आपके मैथमेटिक्स में फिर आपको बोलना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, भूल गया सब। हाँ समझिए, याद करके बता दूंगा, मेरा लिखा है सारे। अच्छा, कौरव के पक्ष जो है 11 अक्षोहिणी और पांडव के पक्ष कितना हो गया? 7 अक्षय। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न पूछा, भाई ये युद्ध क्षेत्र में इतने सैन्य लोग किस लिए आया? केवल हम लोग के तो राज्य के लिए युद्ध हो रहा है, किसके लिए? कौरव और पांडवों के लिए है? और इतने लोग सब आए क्यों हैं? और जो जो युद्ध क्षेत्र में लोग मरेगा, रण क्षेत्र में जब आए हैं कोई नहीं कोई तो मरेगा। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर और भारत के बॉर्डर में जो रहता है, जो सैन्य रहता है, बीच बीच में गोली चलता है कि नहीं चलता? और उस गोली में दोनों पक्ष में कोई तो मरता ही रहता है। कभी पाकिस्तान के सैन्य मर जाता है और कभी भारत के। आपको टीवी में दिखाते हैं ना, है क्या होता है? सीज फायर बोला। अच्छा बोल रहे, मुझे तो पता नहीं, सीज फायर बोल रहे। कभी कभी गोली चलते हैं ना, वो थोड़ा इधर आगे आ जाता है थोड़ा, और फिर क्या मोदी सरकार की सैन्य भी ऐसे करते हैं, फिर उनके अंदर में जाकर के भी उसे क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक है, बिल्कुल घुस जाते हैं, बोले उनके पिटाई कर देते हैं। उसके भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान के अंदर में जाकर के उनके सैन्य के इतना पिटाई करते, पिटाई नहीं उसके साथ है, उसके क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक है, दिखाते हैं भारतीय के सैन्य की जीव वीरता है। आ जाओ बेटा है। अच्छा, मेरे कहने की ये तात्पर्य है, जो उसी प्रश्न के पूछ रहे हैं जी, हम तो उन लोग को क्या मिलेगा? ये इतने राजा, बड़े बड़े राजा लोग जो आए हैं, उनके तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ है? मिलेगा राज्य किसको मिलेगा? कौरव अथवा पांडव के। हार जीत में किसी को होगा, कौरव जीत जाए अथवा पांडव जीत जाए, तो जीतने से किन को मिलेगा? युधिष्ठिर राजा होंगे अथवा दुर्योधन राजा होंगे, यही तो होता है जो जीतेगा। युधिष्ठिर महाराज यही प्रश्न पूछ रहे हैं। हम दोनों भाई हम युद्ध करने के लिए आए हैं, कौरव और पांडव, राज्य के लिए है, एक टुकड़ा जमीन के लिए हम दोनों आए। तो इतने सब प्रजा, इतने सब सैन्य सामंत, दूर दूर से बड़े बड़े राजा, रोथी महारथी लोग यहाँ पर आए किस लिए? वो भी जानते हैं ये युद्ध क्षेत्र में उसमें जय व पराजय होगा, मरेगा नहीं तो बचेगा है? और दोनों पक्ष में कोई नहीं कोई तो मरेगा, जिएगा। ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ये लोग क्यों आए, इनके फायदा क्या है? आपके दोनों भाई लड़ रहे हैं जगह के लिए, और पड़ोसी आकर के कुछ लोग आपके पक्ष लिया और कुछ लोग और आपके और एक भाई के पक्ष ले, दोनों भिड़ने लगे। उनके तो कुछ नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज यही प्रश्न पूछा है? तो ये लोग मरने के लिए क्यों आया किस लिए? उस समय युधिष्ठिर, भीष्म पितामह बहुत सुंदर कहने लगे, देखो जिस प्रकार ये ठंडी के समय आप देखे होंगे लाइट जलता है ना, उसमें अपने अपने छोटा छोटा जो कीड़े होता है, क्या कीड़े बोलते हैं, समा कीड़ा कहा जाता है, हरी हरी रहता है ना, वो उसके आग समझ करके उसमें वो गिर जाता है और सब मर जाता है। देखोगे कार्तिक महीने के समय देखोगे लाइट जलते हैं ना, सुबह देखोगे इतना इतना सब ढेर सब पड़ा हुआ है, और वो लाइट को जब उसे आहार समझ करके वो आ जाता है और ऐसे कूद जाता है। बाद में आग जला दो और सब आकर के उसमें बस समाये होते,
बोले उसी प्रकार यही उनके कर्म ही उसके लेकर के आया, क्योंकि उनके कुछ नहीं मिलेगा, वो भी जानते हैं आया किस लिए। बोले उनके हृदय में जो रजोगुण और तमोगुण जो है वही उनके खींच करके लिए लेकर के आए। देखो स्वयं भीष्म पितामह कहने लगे, ये युधिष्ठिर, ये बड़े बड़े राजा लोग जो है तुम्हारे पक्ष में इनके पक्ष में दोनों जो पक्ष आए, ये लोग अपने आप नहीं आए, उनके हृदय में क्या हुआ, माया के जो द्वारा जो रजोगुण तमोगुण उसको ही उनको खींच करके लाया, और उसी से उनकी कर्मफल आदि उसकी भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार में जीव माया के गुणों के द्वारा ताड़ित होकर के काम हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता, गीता में भगवान भी कहते हैं मेरे गए गुणों के द्वारा ताड़ित होकर के चालित होकर के अंडर गाइडेंस ऑफ माया, वो भी माया के तो अपने गुणों के द्वारा सत्य के द्वारा वो करा लेते हैं और उसी प्रकार उनके पास आ जाता है। इसलिए जो मैंने जो कहा, जैसे आप कह रहे हैं मैं जो दुकान नहीं खुले है कैसे मुझे 2000 रुपया कैसे प्राप्ति हो, मैं देख लेता हूँ। लोग कहते हैं जो महाराज काम नहीं करे तो कैसे आ जाए, बोले तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, तुम जो सोच रहे हो करोगे नहीं, किंतु माया के तमोगुण रजोगुण तुम्हें कराएंगे। क्यों, तुम्हारी सारी पूर्व निर्धारित है, आज तुम्हें 2000 रुपया प्राप्ति है, इसलिए वो माया की वो गुण रजोगुण तुम्हें दुकान क्या करेंगे, खुलवाएंगे, और उसी के अनुसार वो खरीदार भी आएंगे। सब ये सब क्या चार्ट बना हुआ है, सब चार्ट बना हुआ है। रेट स्टेशन ट्रेन आने के स्टेशन में ट्रेन आने के पहली बिफोर अराइव द ट्रेन, और उसके सब चार्ट लिख जाता है ना, है? इस ट्रेन में ये व्यक्ति इस व्यक्ति के सीट नंबर सब कुछ दिया जाता है। अभी ट्रेन पहुंची नहीं है, आप देखे ना स्टेशन में देखा ट्रेन अभी तक पहुंचे नहीं है, किंतु सब पूर्व निर्धारित हो गया है। उसमें भी आप बोलते हैं पूर्व निर्धारित आपके ट्रेन आने वाली है? आपके अनाउंस करते हैं ना स्टेशन में, आपके जो ये नंबर जो है ये नंबर ट्रेन पूर्व निर्धारित है, मैंने पहले से ये निर्धारित है, ये ट्रेन इसी क्या बोलते हैं ट्रैक पे और इस प्लेटफॉर्म में आएगा, और अपने अपने पूर्व निर्धारित सीट अपने पूर्व निर्धारित बोगी में आप कृपया चढ़े एंटर करें। तो सब क्या देखो ये पर भी हम लोग पूर्व निर्धारित करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जितने जीव जो है अपने पूर्व निर्धारित कर्मों के द्वारा वो करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यह पर एक प्रश्न इसलिए कह रहे हैं, भीष्म पितामह कहने लगे हे युधिष्ठिर, ये लोग सब जो आए अपने पूर्वान्वित कर्म और उस कर्म के द्वारा परिचालित होकर माया के सत्व तमोगुण के द्वारा परिचालित होकर आए हैं। उनके जीना मरना जो है उनके पहली कर्म के द्वारा ही वो निर्धारित है, कौन लोग मरेगा और कौन है, ये सब पूर्व निर्धारित है। तो अभी हमें जब ये तो कर्म बाद में आ गए, इस कर्म जब तक चलते रहे इस संसार में बार बार आना जाना पड़ेगा, है? क्योंकि कर्म के अनुसार हम अच्छी कर्म करते हैं, बुरी कर्म करते हैं, पाप और पुण्य कर्म के द्वारा इस संसार में आना पड़ता है। तो कर्म की जो है कहाँ नाश कहाँ हो, जिसके कर्म नाश हो जाने पर समाप्त हो जाने पर जीव भगवान के प्राप्त करते हैं, उस कर्म के नाश की क्या से हो। एक अर्जुन इसलिए पूछने लगे तो भगवान कर रहे देखो मेरे चरण में समर्पित हो जाने से उनके सारे कर्म क्या होता है नष्ट हो जाता है। जब जीव भगवान के चरण में जब अपने को समर्पित कर देते हैं, सदगुरु चरणाश्रय गुरु चरणाश्रय करके भगवत भजन आदि शुरू कर देते हैं, अपने आप उसके कर्म नष्ट हो जाता है। तब उनकी संसार में जाना जो है वो उनके कर्म के ऊपर नहीं करता है, स्वयं भगवान है उनके ही अपने हाथ पकड़ करके नित्य धाम में ले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए
कर्म की नाश और इस संसार में गतागुती आना जाना का नाश किस प्रकार होगा? एकमात्र भगवत भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। समझ में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे तुलसीदास जी कथा सुनाते क्या बोले है? मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कोई, चाहे विधि राखे राम, ताए विधि कोई। सीताराम 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 कोई, चाहे विधि राखे राम, ताए विधि। ओ जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कोई, साधु संग राम नाम, साधु संग राम नाम से, साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए। सीताराम 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 कोई है, सीताराम 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 कोई है। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कोई, ए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कोई, एक आशा राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे। सीताराम सीताराम, ओ सीताराम 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 कोई है। सीताराम सीताराम सीताराम, ओ महल में रखे चाहे झोपड़ी में पास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए। सीताराम 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 कोई, सीताराम 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 कोई। किया वो अभिमान जो अभिमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम सीताराम, ओ सीताराम 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 कोई है। सीताराम सीताराम, ओ सीताराम 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 कोई है। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रोई, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम। अरे गुरु भाई एक कीर्तन कर दो, समाप्त करते हैं। ठाकुर जी की आरती की व्यवस्था करो। 9:30 बजते जा रहे हैं, 9:15 हो गया। ये किसका बेटा है? बेटी है। हाँ बोलो। ओ सखरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के, मदन मोहन के गुण गाऊं। मदन आलिनी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। आलिनी मेरे, बोलो सब बोलो, राहो मदन मोहन के। ओ सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे जय हो। शीश पे मोर मुकुट सोहे, शीश पे बगन पे जनिया मन मोहे, बगन पे
मिल हो ना मुख से वर्णन कर पाऊं सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो मदन मोहन के गुण गाऊं आलीरी मेरे मन अभिलाषा हो मदन मोहन के गुण गाऊं कानन में कुंडल है आला कान में गले में बैजती माला गले अधर मुरली प्यारी लागे मोर सुनो तो मन में सुख पाऊं सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो मदन मोहन के लटे मुख पे काली काली लटे मुख चाल मोहन की मत वाली चाल मोहन जहाँ जाए से दर्शन हो बता दो चल कहाँ जाऊं मेरे मन अभिलाषा हो मदन मोहन के गुण गाऊं बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे वाह हरे राम 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 हरे हरे ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि तगोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा चलो उधर थोड़ा आरती कर लेते हैं इस बात प्रसाद पी के बैठ जाओ हैं? आ जाओ कृष्णदास प्रभु उधर चलिए थोड़ा और सब मिठाई दे दिए तो बंगाल की जल खावर बोलते हैं क्या बोले जल खावर जल के साथ खावर दे दिए जल खाओ हरि बोल क्या बोले क्या बोले ये लो ये खाना नहीं जानती है जानती नहीं दे दे हाथ में ले लो ये लो हो तुम्हारी हो हाँ मिटा जाए खाओ खाओ अच्छा आप भी बैठिए क्या नाम है कैसे अच्छा चलो जय जय राधा कृष्ण